So many time question asked from the title or heading of the section 258 in prelims paper, in objective paper, power to stop the proceeding in certain cases. Power to stop proceeding, the keyword of the section 258, power to stop proceeding in certain cases. In any summon case, instituted otherwise than upon the complaint, it means instituted on the police report, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate. Any other judicial magistrate means the JM second may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage, without pronouncing any judgment. At any stage without pronouncing any judgment, and where the such stoppage or the proceeding is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other cases release the accused, and such release shall have the effect of the discharge. Concerned magistrate or the concerned court has power under section 258 CRPC to stop the proceedings before the pronouncement of the judgment, and reasons to be recorded for stop the proceeding under section 258. And what would be the effect of the stop the proceeding under section 258? There may be two consequences, two effects. If the stop the proceeding after the recording of the evidence of principal witnesses, then shall pronounce the judgment of the acquittal. And if the proceeding is stopped before the recording of the evidence of the principal witness, then the court pass the order of the discharge, court can pass the order of the release the accused under section 258 CRPC. कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति, कार्रवाई रोक देने की या कार्रवाई रोकने की शक्ति, कार्रवाई रोकने की शक्ति, ये इस वो इंडिकेशन के साथ, इस कीवर्ड के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके की कार्रवाई को रोकने की शक्ति जो है वो कौन सी धारा में है, ऐसा पूछा जाता है। कई बार है वो इस तरीके का क्वेश्चन प्रीलिम्स के पेपर में वो पूछा गया टाइटल या हेडिंग से, 258 इज करेक्ट। फिर दूसरी बात और पूछ लेते हैं, कौन से केसेस में कार्रवाई रोकी जा सकती है, whether the proceeding may be stopped if the case summon case is instituted on complaint? No, that this provision is not applicable if the summon case is instituted on complaint. Summon case is instituted on police report, only in that case the power conferred under section 258 may be exercised. Then which magistrate is competent to stop the proceeding? That is the third question from the 258. First class magistrate or with previous sanction of the any other judicial magistrate. Any other judicial magistrate means the judicial magistrate of the second class. In case of the second class judicial magistrate which exercise the power conferred under section 258 to stop the proceeding, there must be a previous sanction of the CJM. But in case of the first class judicial magistrate, there is no requirement of the sanction. Ipso facto, the concerned first class magistrate is competent to stop the proceeding under section 258. हिंदी में आप देखेंगे धारा 258, कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की शक्ति। कौन से मामलों में? परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामला। परिवाद से भिन्न आधार पर, इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस रिपोर्ट पर। इसका दूसरा मतलब क्या है? पुलिस रिपोर्ट पर। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो समन मामला है, उस मामले में धारा 258 की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। किस मजिस्ट्रेट के द्वारा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यहां क्या मतलब है? सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम सेकंड क्लास। ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, और जहां मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के बाद यदि कार्रवाई रोकी जाती है इस धारा 258 में,
तब वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है, और जहां किसी अन्य दशा में मतलब मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य लेखबद्ध करने से पहले। अन्य दशा का क्या मतलब है? मुख्य यदि मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य लेखबद्ध करने से पहले कार्रवाई है वो रोकी जाती है धारा 258 के अंतर्गत, तब क्या ऑर्डर है वो किया जाएगा? अभियुक्त को छोड़ सकता है, अभियुक्त को छोड़ने का या रिलीज करने का ऑर्डर है वो कर सकता है, और इस रिलीज का क्या प्रभाव होगा? छोड़ने का प्रभाव है वो उन्मोचन होगा। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित समन मामले में ये 258 की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकता है, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है, और अन्य में कौन है? द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि 258 की शक्ति का प्रयोग करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। किस स्टेज पे? निर्णय सुनाने से पहले किसी भी स्टेज पे कार्रवाई रोक सकता है। कार्रवाई रोकने का परिणाम क्या होगा? कार्रवाई रोकने के दो परिणाम हो सकते हैं। प्रिंसिपल विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद कार्रवाई रोकी गई है, ऑर्डर और द जजमेंट ऑफ द एक्विटल। और यदि प्रिंसिपल विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले कार्रवाई रोकी गई है, ऑर्डर ऑफ द रिलीज ऑफ अक्यूज। यदि मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद कार्रवाई 258 में रोकी जाती है, दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है, और मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य लेखबद्ध करने से पहले कार्रवाई रोकी जाती है 258 में, तब अभियुक्त को छोड़ने का ऑर्डर कर सकता है, और छोड़ने का क्या प्रभाव होगा? उन्मोचन होगा। सेक्शन 259 may be asked in prelims and mains both। प्री में डायरेक्ट इसके टाइटल से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इवन मेन एग्जाम में भी 259 पूछा जा सकता है आपसे। पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट द समन केसेस इनटू वारंट केसेस। पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट द समन केसेस इनटू द वारंट केसेस। The directly question may be asked from the title or heading of the section 259. Which section of the CRPC is concerned to the power of the court to convert the summon cases into the warrant cases? When in the course of the trial of a summons case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate, it is the precondition for converting the summon case into the warrant case, that offence must be punished with exceeding 6 months imprisonment. Only the such case shall be converted, may be converted into the warrant cases under section 259. It appears to the magistrate that in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may in its discretion proceed to rehear the case in the manner provided by this court for the trial of the warrant cases, and may recall the any witness who may have been examined. If in the interest of justice there should be a trial of that offence according to the procedure which is prescribed for the trial of warrant cases under the chapter 19 of the CRPC, and that offence is punishable exceeding 6 months imprisonment, then the concerned magistrate or the concerned court has power under section 259 to convert that case into the warrant case, and adopt the procedure for the warrant cases prescribed under chapter 19 of the CRPC, recall the witnesses who have already examined, and the rehear the case as per the section 259 of CRPC. हिंदी में आप देखेंगे समन मामलों का वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। डायरेक्ट टाइटल और हेडिंग से क्वेश्चन आता है इस प्रोविजन से प्रीलिम्स के अंदर। समन मामलों को वारंट मामला में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति निम्न में से किस धारा में? सेक्शन 259 में।
और इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। लघु टिप्पणी लिखिए, लघु टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए इस 259 पे। ऐसा कोई क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी वाले मेंस में भी मुझे आइडिया नहीं कि अभी पूछा गया, बट आरजेएस में भी पूछा गया, जीजेएस में भी पूछा जाता है ये 259, तो आप इसके लिए रेडी रहें। कौन से केसेज है जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है? जब ऐसे किसी अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो कैसा है, जो 6 माह से अधिक कारावास से दंडनीय है, ऐसा कोई है वो अपराध से संबंधित है समन केस जो 6 महीने से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध है। यदि 6 महीने से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध है, केवल जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध है, उसका 259 के अंदर समन मामले का वारंट मामले में कन्वर्जन या परिवर्तन नहीं हो सकता। जो 6 महीने से अधिक कारावास से दंडनीय मतलब प्रेस्क्राइब जो पनिशमेंट है उसके लिए एक्सीडिंग 6 मंथ है, 1 ईयर हो सकता है, और मैक्सिमम है वो 2 ईयर है वो हो सकता है, क्योंकि समन केस ही है वो मैक्सिमम लिमिट 2 ईयर की है। 1 ईयर या मैक्सिमम है वो 1 ईयर या 2 ईयर, 1.5 ईयर कहीं पनिशमेंट मैंने आईपीसी में देखा नहीं, और 9 मंथ 7 मंथ एटसेट्रा भी नहीं है। तो जो 1 वर्ष तक के वो इसमें है वो मैक्सिमम फॉल हो सकते हैं। जो मे एक्सटेंड टू 6 मंथ है वो भी फॉल नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सीडिंग 6 मंथ। जो 6 महीने तक के कारावास से दंडनीय अपराध है बहुत सारे, वो भी कवर नहीं होंगे इसमें। एक्सीडिंग 6 मंथ है जिस ऑफेंस के अंदर, और उस ऑफेंस की नेचर है वो समन केस है, उस केस को न्याय हित के अंदर, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, न्याय हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार है वो किया जाना चाहिए। ऐसा मजिस्ट्रेट की राय है, ऐसा उस कोर्ट की राय है जो उसकी ट्रायल है वो कर रहा है। ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामले के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से, मीन्स जो अध्याय 19 में मैनर दे रखा है इसका, चैप्टर 19 जिसमें वारंट ट्रायल का प्रोसीजर पढ़ा, उस प्रोसीजर से उस मामले की पुनः है वो सुनवाई कर सकता है, और साक्ष्यों को पुनः है वो बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। उस मामले को जो है वो री हियरिंग उसकी या पुनः सुनवाई कर सकता है, और जो विटनेसेस जो ऑलरेडी परीक्षित हो चुके थे ऐसा कन्वर्ट करने से पहले, उन विटनेसेस को दोबारा भी है वो बुलाया जा सकता है, क्योंकि वारंट का प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। समन का जो है वो सिंपल प्रोसीजर है और शॉर्टर है, और वारंट केसेस का है वो डीप है वो प्रोसीजर है। तो उस डीप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका वो एविडेंस एटसेट्रा रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा है वो बुलाया जा सकता है। What are the differences between summon cases and warrant cases? What are the differences between the summon cases and warrant cases? समन मामला और वारंट मामलों के बीच में अंतर क्या? अभी आरजेएस मेंस जो हुआ था 30 अप्रैल एंड 1 मई को, उसमें भी इस पर क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट पे था, डिफरेंस बताइए, यानी 3, उसमें 5 दे रखे थे, वो उसमें से एक ये भी था, समन केस और वारंट केस में डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द समन केस एंड वारंट केसेस? The Code of Criminal Procedure prescribes the 2 procedures for the trial of the warrant cases by magistrates, namely one adopted by the magistrate in case instituted on a police report, or the others adopted by the magistrate in case of the instituted on police report, or other, ये भी इसी का पोर्शन था, ये बाय मिस्टेक पेस्ट हो गया, the other in case instituted otherwise than on a police report. So there are 2 types of the procedure is given under the 238 to 243 and 244 to 247 in case of the warrant cases. But in trial of the summon cases, only the one procedure followed, whether instituted on the police report or a complaint. समन केसेस में ओनली 1 प्रोसीजर है, 254 एटसेट्रा में एविडेंस रिकॉर्ड करने का कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पर नहीं से। देन सेकंड डिफरेंस, द प्रोसीजर फॉर द समन केसेस इज सिंपलर एंड स्पीडियर, whereas the procedure for the warrant cases are complicated and slower.
Next difference, in a warrant case, instituted otherwise than on a police report, the accused gets the more than one opportunity to cross-examine the prosecution witnesses. One opportunity under section 244 and another opportunity under section 246 CRPC. Whereas in summon cases, he gets only the one opportunity to cross-examine the prosecution witnesses. One more difference, the magistrate empowered to convert a summon case into the warrant case under section 259 of CRPC. Whereas a warrant case cannot be converted into a summon case. Magistrate has power under section 259 to convert a summon case into the warrant case, but vice versa is not possible. The warrant case cannot be converted into a summon case. In a summon case, after the issue of the summon, the accused may plead guilty by post without appearing before the magistrate, whereas no such provision exists in the trial of the warrant cases. That this provision is under section 253, read with the 206 CRPC, but there is no provision in warrant case. In warrant cases, it gives the greater opportunity for defense, whereas in summon cases, it does not give the greater opportunity of the defense. Shorter opportunity of the defense in case of the summon case. In summon case where the personal attendance of the accused has dispensed with either under section 205 or section 317 CRPC, the court should have power to dispense with his examination. His examination means examination under section 313. Whereas even where his personal attendance has dispensed with, the accused should be examined personally under section 313 CRPC. In warrant cases, the framing of formal charge is necessary, whereas in summon case, framing of the formal charge is not necessary. Then in summon case, there is no express provision to hurt the accused on the question of sentence, whereas in warrant cases there is express provision to hurt the accused on the question of sentence. The last difference, in summon cases, no charge arguments, whereas in warrant cases there must be a charge arguments. These are the basic differences between the warrant cases and summon cases. इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास मैटर है, उसमें नहीं है, इसलिए स्पीडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें. समन केस न कहकर समन ट्रायल और वारंट ट्रायल कहे तो ज्यादा अच्छा है. What are the difference between the summon trial and warrant trial? डिफरेंस केस का नहीं है, ये डिफरेंस किसका है? ट्रायल का है. केस का डिफरेंस तो केवल पनिशमेंट पर बेस्ड. तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप. What are the difference between the summon trial or warrant trial? या ट्रायल ऑफ समन केसेस एंड ट्रायल ऑफ वारंट केसेस. हिंदी में भी आप देखें, समन
मामलों के विचारण और वारंट मामलों के विचारण में क्या अंतर है? वही जो इंग्लिश में पढ़ा वैसा का वैसा हिंदी में है। समन मामलों का विचारण और वारंट मामलों का विचारण। पहला जो डिफरेंस है, समन मामलों में केवल एक ही प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो या परिवाद पर संस्थित हो। जबकि वारंट में विचारण में दो प्रकार की प्रक्रिया का उपबंध है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले। समन मामलों की प्रक्रिया साधारण और त्वरित है, जबकि वारंट मामलों की प्रक्रिया जटिल और धीमी है। समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन के साक्ष्यों से केवल एक बार प्रतिपरीक्षा करने का अवसर होता है, जबकि वारंट मामलों के अंदर पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों में अभियुक्त को अभियोजन के साक्ष्यों से एक से अधिक बार प्रतिपरीक्षा करने का अवसर होता है। मजिस्ट्रेट समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने के लिए सशक्त है, सेक्शन 259 सीआरपीसी, जबकि वारंट मामलों को समन मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। समन मामलों में समन जारी करने के बाद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए बिना दोषी होने का अभिभाग डाक आदि के माध्यम से भेज सकता है, 253 रीड विद सेक्शन 206, जबकि वारंट मामलों के विचारण में ऐसा कोई प्रावधान है वो नहीं है। समन मामलों में प्रतिरक्षा का कम अवसर है वो होता है, जबकि वारंट मामलों में प्रतिरक्षा के लिए वो अधिक अवसर होता है। समन मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 या 317 के अंतर्गत अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने पर न्यायालय उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है, और परीक्षा का यहां क्या मतलब है, 313 सीआरपीसी में परीक्षा या बयान मुआवजे, उससे भी है वो अभिमुक्ति दी जा सकती है। जबकि वारंट मामलों में अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने के बावजूद भी अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से वो परीक्षित किया जाएगा, 313 की परीक्षा मैंडेटरी रूप से होगी उसकी। समन मामलों में औपचारिक आरोप की विरचना आवश्यक नहीं है, जबकि वारंट मामलों में औपचारिक आरोप की विरचना है वो आवश्यक है। समन मामलों में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनने का अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है, जबकि वारंट मामलों में दोष सिद्धि की दशा में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर आज्ञापक रूप से सुनने का अभिव्यक्त प्रावधान है, 248 के सबसेक्शन 2 में। और समन मामलों में आरोप बहस है वो नहीं होती है, या आरोप बहस का स्टेज नहीं है, प्रक्रम नहीं है, जबकि वारंट मामलों में आरोप बहस है वो होती है। तो ये समन विचारण या समन मामलों के विचारण और वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के बीच में है वो इस तरीके से आप डिफरेंस या अंतर है वो नोट कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, और एनी 2 एनी 3 इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई 2 अंतर बताइए, कोई 3 अंतर बताइए, ऐसा कोई शॉर्ट नोट भी है वो आ सकता है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्पीडली स्क्रीनशॉट ले लें। Yes, now we start the chapter 21 of CRPC, that is Sir, first one screenshot take लिया। अभी ग्रुप में भेज देंगे, स्टूडेंट काफी लोगों ने लिया है।